हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से आ गए एक न्यू पॉडकास्ट सीरीज के साथ। एंड हमारे सामने बैठे हैं आयन राज एंड ही हैज क्रैक्ड आर्सेसियम। तो इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं क्या क्या रिसोर्सेज इन्होंने फॉलो किया था, क्या क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन इन्होंने करा था, क्या क्या रोड मैप्स इन्होंने फॉलो किया था, फिर क्या क्या बेसिकली कोडिंग राउंड में क्या क्या पूछे गए थे, इंटरव्यूज में क्या क्या मतलब क्या क्या लेवल हुआ था, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहो हमारे साथ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तब मजा आएगा। और वीडियो मजा आएगा तो यार वीडियो को लाइक मार देना, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग यार कम से कम 500 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हाय आयन, हाउ आर यू? Hi Yogesh, I am good. दैट्स ग्रेट। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को, तो उन लोगों को पता चल जाएगा आप क्या है क्या नहीं। ठीक है। Yes, yes. So, hi everyone, my name is Ayan Ram and I have recently completed my BTech in Computer Science Engineering from Institute of Engineering and Management, Kolkata. And currently I am working as a software engineer at RCCM. So that's great. So he is also from Kolkata. I am also from Kolkata. He is from IEM college and yeah, currently is placed at Arcesium. तो चलो आर्सीजियम के बारे में और बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, वेदर इट वाज एन ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी, ये थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। So ये off-campus opportunity था and I have been referred by a technical lead who is currently working at RCCM since 10 years. अच्छा। And I got to know about maybe he has posted somewhere some links. So I am not aware, but yeah, this is it. तो ऑडियंस में आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि लिंक्डइन में थोड़ा एक्टिव रहा करो, रिक्रूटर्स लोगों को फॉलो करते रहो, बिकॉज वो लोग जब भी ओपनिंग्स निकलते हैं किसी कंपनीज में तो वो लोग यार डाल देते हैं, लिंक्डइन में पोस्ट वगैरह कर देते हैं, तो तुम लोग उन लोगों के संग रीच आउट कर सकते हो। सो आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू ऑल टू प्लीज फॉलो लिंक्डइन। और मतलब ऐसे यार कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी में मत फंसो, मतलब रिक्रूटर्स को फॉलो करो और उन लोगों को फॉलो करो, मतलब फालतू का मत चलाओ। रिक्रूटर को फॉलो करो, उन लोगों का पोस्ट देखते रहो, वो लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो वहां से तुम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, रेफरल वगैरह लेना है तो एम्प्लॉयर्स लोगों को तुम रीच आउट कर सकते हो। ठीक है। सो या सो लाइक दिस ही गॉट द So today opportunity. I am going to give you this really important information that you cannot miss. Such opportunities where you are taught this very important skills extensively for free do not come by every now and then. So Geeks for Geeks has come up with the workshop lineup and I am here to tell you about a very special one, that is the competitive programming live. We always come across such question as what does it take to become a top programmer in a lead coding competitions like ICPC or Google Kickstart. Well, a brief answer to this would be a great problem solving skills, sharp techniques, an adequate way of implementing the mathematical algorithms, and the ability to write a clean and optimal code. This may sound too much for now, but we all know that we have to master most of the skills to secure a high rank in some of the leading competition. If your goal is to crack this competition, then this workshop is a must for you. Attend this workshop and watch our in-house mentor Mr. Ayush Gupta talk about the different ways in which this course teaches you to develop the skill required to top this coding competitions. The competitive programming workshop starts from 17th of October and it will run till 18th of October from 8 p.m. to 9 p.m. And one more workshop is there, DSA Live for Working Professionals, which starts from 18th and extend till 19th of October 2021, which is from 6 p.m. to 7 p.m. One more point, the workshop will be conducted on Zoom and there will be only 500 limited seats available. So if you wish to attend this any of the workshop, then make sure to register So can you immediately. explain me all the rounds in a brief, कि कितने राउंड्स हुए थे टेक्निकल और क्या क्या था वो बता दीजिए। हाँ तो there was total of 5 rounds और इसमें फर्स्ट राउंड था ऑनलाइन असेसमेंट जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन थे और ऑलमोस्ट 1 आवर का था ये। तो दोनों क्वेश्चन का लेवल मीडियम ही लेवल था, मतलब मीडियम हार्ड कह सकते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो yeah, so first assessment was of 1 hour and after that there was 4 rounds of interview. तो 3 टेक्निकल था एंड एक हायरिंग मैनेजर टाइप का था, वी कैन से हायरिंग मैनेजर प्लस HR राउंड। ओके, सो द फर्स्ट वाज ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट जिसमें कोडिंग पूछे गए थे, फिर 3 आपका टेक्निकल था और एक आपका हायरिंग मैनेजर था। सो लाइक दिस 5 राउंड्स पे थे। तो बेसिकली आपका जो टेक्निकल राउंड था उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टॉपिक से? बेसिकली बहुत लोग मेरे से टेक्स्ट करते रहते हैं कि भैया कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए, कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपके आपके इसमें क्या टॉपिक ज्यादा पूछे गए थे और किस लेवल के पूछे गए? हाँ तो मैं बताता हूँ ईच एंड एवरी राउंड में कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए सर। तो फर्स्ट राउंड में मतलब फर्स्ट टेक्निकल राउंड में मेनली प्रोजेक्ट DSA एंड
some DBMS concept and some puzzle question were also asked. तो मतलब DSA क्वेश्चन में था कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों मतलब आई कैन से कि वो DP से तो नहीं था, लेकिन मतलब DP से उसको कर सकते थे, लेकिन मैंने ग्रीडी अप्रोच दिया और इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड था, तो मैंने उसको DP अप्रोच नहीं बताया। तो और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि मींस एरे और मैपिंग से रिलेटेड था, तो हम लोग उसको उससे मतलब हैशिंग और एरे का कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन था, वो मीडियम लेवल का था। और उसके अलावा DBMS का जो क्वेश्चन था, तो DBMS का क्वेश्चन में ज्वाइन से रिलेटेड क्वेरी पूछे थे वो लोग, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो जनरली DBMS के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और उसके अलावा 2-3 पजल भी पूछे गए थे जो गिग्स फॉर गिग्स पे अवेलेबल है, सम ऑफ देम, लेकिन मतलब उसी के लेवल का था, तो नॉर्मली इजी ही पजल पूछे गए थे। तो फर्स्ट राउंड में यही था। सेकेंड राउंड फिर हुआ उसके 2-3 दिन के बाद। तो सेकेंड राउंड में मेनली प्रोजेक्ट डिस्कशन हुआ था। तो प्रोजेक्ट डिस्कशन मीन्स 1 घंटे का था इंटरव्यू, ईच एंड एवरी राउंड वाज ऑलमोस्ट 1 आवर। तो 1 घंटे में ऑलमोस्ट शुरू के 40 मिनट्स प्रोजेक्ट पर ही गए थे, और उसके बाद जो 20 मिनट बचा उसमें एक DSA का क्वेश्चन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, और टॉपिक था रिकर्सन। मीन्स वो भी DP का ही था ऑलमोस्ट, बट उसमें भी मैंने DP का सोल्यूशन नहीं दिया, रिकर्सिव सोल्यूशन में ही वो सेटिस्फाइड हो गए थे, बट DP के बारे में बता दिया थोड़ा, तो वो लोग सेटिस्फाइड थे, मीन्स कोड रिकर्सन वाले ही करवाए थे। तो उसके अलावा थर्ड राउंड में मीन्स मे बी वो लोग को लगा होगा ऐसा कि DSA का ज़्यादा और अच्छा से लेना चाहिए इंटरव्यू, तो थर्ड राउंड टोटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हायरिंग मैनेजर टाइप का होगा, लेकिन थर्ड राउंड में वो लोग मीन्स इंटरव्यूअर एक तो मीन्स मे बी उनको कोई काम होगा तो 10 से 15 मिनट लेट ज्वाइन किए, और आते ही मीन्स हम लोग 1 मिनट का इंट्रो हुआ और 45 मिनट्स 2 कोडिंग क्वेश्चन टाइप का चला, और दोनों क्वेश्चन मीन्स मीडियम और हार्ड लेवल के थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ट्री से रिलेटेड, लीड कोड पे भी क्वेश्चन है उसका ही मीन्स वेरिएशन, बट नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो वो है। और एक था वो कह सकते हैं कि स्ट्रिंग प्लस ग्रीडी, ये क्वेश्चन था सेकंड। तो ये दोनों क्वेश्चन था, 45 मिनट्स था, और ऑलमोस्ट 40 मिनट में हम लोग दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो इंटरव्यू बहुत ही सेटिस्फाइड था और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, तो बहुत ही हेल्प किया मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच डिस्कशन करने में। तो यही था। और लास्ट राउंड में लाइक लास्ट राउंड ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का चला, जिसमें फर्स्ट के 15 मिनट्स थे नॉर्मल HR क्वेश्चन, और उसके बाद सम मीन्स पोजीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, और लास्ट में थोड़ा सा नेगोशिएशन राउंड हुआ था। तो या तो दिस वाज या ऑडियंस, तो इस तरह का कुछ इनका इंटरव्यूज हुआ था। तो हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्स मीडियम लेवल का इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस हार्ड लेवल के ही पूछे गए थे। तो यू कैन एक्सपेक्ट इजी मीडियम हार्ड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो तुम्हें हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। और अगर मैं समराइज करूँ तो मैक्सिमम जो टॉपिक्स पूछे जा रहे थे अप्रोक्स रिकर्जन DP तो पूछा जा रहा था। इन माई केस ऑल्सो आई हैव ऑल्सो गिवन लॉट्स ऑफ इंटरव्यू, तो उसमें भी यार रिकर्जन तो पूछ लिए ही जाते हैं, क्योंकि यार उससे थॉट प्रोसेस और अच्छे से टेस्ट होता है, राइट। सो बोल सकते हैं कि ट्रीज, DPs, ग्राफ्स और मतलब पूछे जाते हैं। तो यार प्रिपेयर रहना ये सब टॉपिक को लेकर, बिकॉज बहुत बंदे ये सब को छोड़ देते हैं बिकॉज थोड़ा हार्ड लगता है उन लोगों को, बट या इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यार दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द राउंड्स। तो और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा था, व्हेन यू स्टार्टेड योर कोडिंग जर्नी, और क्या रोड मैप आपने फॉलो करा था, मतलब कौन सी ईयर में आपने स्टार्ट करा और फिर कैसा कैसा प्रोसीजर आपने फॉलो किया, ये आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं छोटे से स्कूल से पढ़ा हूँ, गांव के स्कूल से। तो वहाँ पे तो कोई कंप्यूटर नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, मीन्स मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं था, और इवन कंप्यूटर ही नहीं था। तो मीन्स 10th तक तो कुछ चला नहीं, और उसके बाद से 11th-12th में भी कंप्यूटर से कोई कनेक्शन नहीं बन पाया, क्योंकि JEE के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बिजी था। तो आफ्टर कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट ईयर तो पूरा मस्ती में बीत गया, कोई कोडिंग नहीं हुआ। और मतलब कॉलेज के मतलब कोलकाता में जाने के बाद केवल घूमना फिरना यही फर्स्ट ईयर में चला। तो सेकेंड ईयर से
मीन्स फर्स्ट ईयर का लास्ट में, मीन्स सेकेंड सेमेस्टर का सारे एग्जाम समाप्त हो गया था। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि 15 डेज का कोर्स होता है वर्कशॉप टाइप का IIT KGP में। तो वहाँ पे मैंने पाइथन का वर्कशॉप किया और वहीं से मेरा कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। मीन्स उसी समय मैंने लैपटॉप भी लिया और लाइक 15 डेज का वर्कशॉप किया और वहाँ से कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन आफ्टर सम डेज लाइक हम फील किए ऐसा कि पाइथन में 15 दिन में उतना अच्छा सीख नहीं पाए, तो हम सौरभ शुक्ला के वीडियो से कंटिन्यू किए लाइक सी लैंग्वेज। तो उनका सारा वीडियो देखे और उसके बाद से हैकर रैंक पे, हैकर अर्थ पे थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किए। तो इसी तरह शुरुआत हुआ था। और उसके बाद थर्ड ईयर में आकर गीक्स फॉर गिग्स से एक कोर्स लिया था मैंने, प्लेसमेंट 100 नाम का कोर्स है। तो मेनली मैंने वही कोर्स को कंप्लीट करने में अपना पूरा थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर दे दिया। रिपीट कोर्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, मीन्स इंटायर टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वीडियोज एंड रिसोर्सेज होंगे उसमें जो क्वेश्चंस अवेलेबल थे। तो उन सबको करते करते इवन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो इतना वास्ट है। लेकिन मतलब बहुत ही वर्थ कोर्स है। तो मतलब उसी से मैंने किया। और या तो यही जर्नी था। और कॉलेज में मीन्स कॉलेज में तो उतना C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर का ही सेमेस्टर में था, तो उस समय तो हम पढ़े नहीं थे कुछ। तो जो भी पढ़े तो बाहर से ही पढ़े थे, ये कोर्स से और कुछ उस यूट्यूब वीडियो को प्रेफर करके। तो यही अच्छा, कोडिंग जर्नी है मेरा। तो आई थिंक ऑडियंस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन्होंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करा। तो तुम लोगों की अगर फॉलो कर रहे हो तो तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो और अच्छे बन सकते हो। ठीक है। सो यार, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट हिज कोडिंग जर्नी। तो एंड करने से पहले कुछ आप आउटरो कुछ दे सकते हैं, कुछ टिप्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स लोगों के लिए कि मतलब क्या क्या करना चाहिए उन लोगों को इन देयर इंजीनियरिंग लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही टिप्स देना चाहूँगा जो लाइक मैं फील करता हूँ कि मुझसे वो गलती हुई है। तो पहला चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइक जब भी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, DSA एंड लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो हम लोग हमेशा जब भी यूट्यूब बोलते हैं तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग बहुत सारा अदर इंट्रो टाइप का वीडियो देखते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं कि कैसे करें डिफरेंट डिफरेंट रोड मैप्स और डिफरेंट डिफरेंट लाइक ऐसा वीडियो का टाइटल रहता है कि 1 महीने में कंप्लीट कर लो या फिर 3 महीने में फैंग निकाल लो। मतलब इस तरह का वीडियो सब रहता है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि इस तरह के वीडियो से बचना चाहिए हम लोग को, क्योंकि इस तरह का वीडियो उन्हीं लोग के लिए फायदेमंद है जो ऑलरेडी, जिनका ऑलरेडी बेसिक क्लियर है। एक बार हम लोग बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं तो हम लोग खुद जानते हैं कि हम लोग को क्या करना है। तो टिल द टाइम हम लोग का बेसिक्स क्लियर नहीं है तब तक हम लोग को इस तरह के वीडियोस को प्रिफर नहीं करना चाहिए जो केवल सजेस्ट करते हैं या फिर गाइडिंग टाइप के हैं। टिल द टाइम हम लोग को हमारे पास गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस के लिए हम लोग ले सकते हैं लेकिन उसी में टाइम पास नहीं करेंगे जो मतलब मैंने किया। और मैं चाहता हूँ कि दूसरे कोई ऐसा नहीं करे, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ। जो फर्स्ट ये मेरा सजेशन है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। और सेकेंड लाइक मैं बोलना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम लोग तो केवल DSA एंड डेवलपमेंट अगर करें तो वही काफ़ी है। तो DSA को सबसे पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए कि हम लोग को DSA स्ट्रांग रहे। तो उसके लिए मीन्स एक लैंग्वेज का जानना और उससे रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। एंड उसके बाद टाइम मिले, अगर टाइम तो मिलता ही है अगर हम यूटिलाइज करें तो उसके बाद डेवलपमेंट के लिए हम लोग मतलब जो भी हो एंड्रॉयड वेब ML जो भी हो उसमें हम लोग दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट। तो सेकंड यही सजेशन रहेगा कि मतलब DSA और डेवलपमेंट दोनों पर फोकस करें। और वाइल प्रिपरेशन हम लोग एक चीज़ छोड़ देते हैं जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही ईजी है, वो है CS फंडामेंटल एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो इन दोनों चीज़ के कारण मतलब शुरुआत के इंटरव्यू में बहुत सारे मेरे को रिजेक्शन मिला है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मीन्स जब कॉलेज में पढ़ाया जाता है CS फंडामेंटल, तो जिस समय सब्जेक्ट में रहता है उसी समय अच्छा से पढ़ लेना चाहिए, ताकि मतलब बाद में मतलब हम लोग बोर हो जाते हैं, थियोरेटिकल है तो हम लोग उसको प्रीफर भी नहीं करते हैं। तो हम लोग को उसको जिस समय कॉलेज में रहता है उसी समय पढ़ सकते हैं, और उस समय अगर नहीं पढ़ें तो फिर बाद में ही पढ़ सकते हैं।
तो CS फंडामेंटल को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए। एंड जनरल एप्टीट्यूड के लिए तो वो ऑलमोस्ट सभी को आता है, लेकिन उसमें बेसिकली यही करना रहता है कि हम लोग को गिवन टाइम फ्रेम में मतलब फास्टली आंसर देना है। तो उसके लिए बस कुछ प्रिपरेशन ऑनलाइन बहुत सारे हैं, तो उससे हम लोग कर सकते हैं। मीन्स 1-2 दिन का तैयारी भी काफ़ी है, लेकिन अगर हम लोग नहीं किए हुए रहते हैं तो उसके लिए टेस्ट में मतलब ऑनलाइन टेस्ट में ही रिजेक्शन मिल जाता है बहुत सारे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान देने वाला, और मेरे को रिजेक्शन मिला है इन गोल्डमैन सैक्स एग्जाम। तो मतलब उसके बाद से ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे को करना चाहिए था ये प्रिपरेशन। तो ये सेकंड सजेशन रहेगा कि DSA डेवलपमेंट एंड CS फंडामेंटल एंड जनरल एप्टीट्यूड पर फोकस करना चाहिए। एंड थर्ड विल बी लाइक कि कीप फेथ ऑन योर सेल्फ। एंड लाइक अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आप जानते हैं कि हमने DSA कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, तो आपका प्लेसमेंट होना तय है। मे बी लेट से हो बट होना तय है। तो ऐसा लाइक रिजेक्शन बहुत मिलता है कॉलेज में प्लेसमेंट में भी, और जो Tier 3 से हैं उनको तो बाहर से और ही ज़्यादा मिलता है। मतलब उनका तो रोज का शुरुआत ही होता है रिजेक्शन में। तो मतलब उसमें घबराना नहीं चाहिए। तो मतलब पहला तो खुद पे फेथ अगर हो कि मतलब मैंने प्रिपरेशन अच्छा से किया, ऑनेस्टली किया है, तो होना ही होना है। तो मतलब अगर पेशेंस हम लोग रखें तो सब चीज़ पॉसिबल है। तो पेशेंस सबसे मेन की है। तो थर्ड सजेशन मेरा यही रहेगा कि पेशेंस रखें और या प्रिपरेशन अच्छे से करें। या दैट्स तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या नहीं फॉलो करना है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्लिक विद वीडियोस को ज्यादा नहीं देखना है, बिकॉज यार बस वो आई नो कि तुम लोग देखोगे बस छोड़ दोगे उसको, फॉलो तो करते नहीं हो, बहुत लोग फॉलो नहीं करता आई थिंक। तो यार बेसिक से सब कुछ करो, अच्छे से करो पूरा यार एकदम, मतलब डिस्ट्रैक्शन मत जाओ यार, ठीक है, वरना दिक्कत होगी। यूट्यूब का यार अच्छे अच्छे चीजों का फायदा उठाओ, ठीक है, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम तुम लोगों को सजेस्ट करेगा कि ये देखो बट नहीं देखना है, तुम्हारे जो काम है वो देखना है, ठीक है। So yeah, this was everything about today's video and everything about his journey. ठीक है, so I think तुम लोगों को मजा आया होगा, और सही मजा आया तो वीडियो को लाइक मार दो यार अगर मजा आ गया है, और कमेंट करके बताओ कि तुमको कौन सा पार्ट मजा आया। और तुम लोग अगर कोई जर्नी शेयर करना है तो तुम लोग भी कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो अगर करना चाहोगे। तो या दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल में नए होगे तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। चलो तो या दैट्स इट, चलिए भैया, बाय बाय एवरीवन, बाय। बाय।